So, beta dear children, once again, very good morning to you all, and rather beta welcome you all in this class, beta. So, as per our last discussion, beta, we have completed our last chapter also, including the exercise and some of the questions, important type of questions which we were intending to do, beta. And yesterday we were having those two very, very important numerical problem types which you have completed. That is rather remarkable. And now, beta, as you know that our syllabus, it stands finished, beta. You have all been asked to maintain your beta NCRT exercise on your notebooks well, and roll number 10, 25 and 35 beta. These students' notebooks are required by Madam Principal. So try to send that exercise solved from the latest chapter beta as early as possible, so that your work may be seen by respected Madam Principal beta. So मैं roll numbers बेटे एक बार लिख देता हूँ. Roll numbers, these are 10, then बेटे 25 and 35, 9th A, B, C and बेटे D, चारों sections के ये जो roll numbers हैं, ये बच्चे अपनी नोटबुक से भी कंप्लीट करके सेंड कर देंगे मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे, बिकॉज दीज आर डिमांडेड बाय मैडम प्रिंसिपल बेटा. नाउ बेटे let me begin with the revision part of our physics. Here bete I will be beginning with the work done bete. Very systematically we will start revising the whole syllabus of our third periodic test beta. Beginning with the work done bete. Let us have work done beta. How we can define the term work done beta. Beta, dear children, we can say that work is said to be done if the point of application of the force changes with it. With a point of application of the force changes, what do we mean by this term, beta? Here, by this term, point of application of force, I would mean that imagine this is again the straight line, straight road, and we have placed some object at this point, say A. Mass of this object can be considered to be equal to small m, and when I apply a force F upon this object A with A, because the force has been applied parallel to the horizontal direction, we expect the object to move along the horizontal. So dear children, imagine that your object, it reaches up to point B under the application of this force, and due to this reason, it is said that the point of application of the force beta changes. And obviously beta, I have another way to define this work done beta. We will say that beta, when an object moves in the direction of applied force, work is said to be done with it. Obviously बेटे work done जो है, we are starting with the revision part बेटा. Mathematically
mathematically work done beta, this is the product of force and distance covered in the direction of the force beta. Force multiplied by distance covered in the direction of force. Just now we have drawn the diagram today. I will be redrawing that diagram, but now at the top. So I have with me with a horizontal surface. This is horizontal surface, dear students. And here is our point A, where we were placing the object beta. Imagine the mass of the object to be small m. And furthermore, let F be the force applied. But force is a vector quantity, you know well. Under this applied force, your object, it reaches up to point B, and imagine that the distance covered is equal to S. As per our definition and mathematical expression, this is the force applied. This is the distance covered in the direction of the force applied. And now we will have the work done calculated beta. So dear children, you can once again focus upon the diagram and have the mathematical expression that the work done W, this is the product of the force and the displacement or the distance covered in the direction of the force. And here it will be very important to talk about the units of work done. You all might be knowing the SI units of force beta, these are Newton. And what are the SI units of distance beta? SI units of distance is किलोमीटर नहीं बेटे मीटर. SI unit मीटर है, किलोमीटर otherwise distance का unit है, but that is not SI unit. Now let us talk in terms of units over here. In SI का मतलब होता है बेटे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बेटे. ठीक है जी. इंटरनेशनल सिस्टम क्या होता है? जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स सारे कंट्रीज ओबे करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल. नथिंग डन बेटे इन द 5 minutes. वी आर जस्ट बिगिनिंग विद द वर्क डन. डोंट वरी बेटा, वी आर जस्ट रिवाइजिंग. हाँ जी, रिवीजन बेटे, बिल्कुल रिवीजन बेटे. डियर स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू लिसन वेरी केयरफुली बेटा. अवर सिलेबस फिजिक्स होल सिलेबस स्टैंड्स फिनिश्ड बेटा. आपने बहुत मेहनत की है. आपका जो लास्ट चैप्टर साउंड वेव्स वाला था वो सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है, तो हमारा सारा सिलेबस बेटे फिनिश्ड है. तो मैंने वर्क डन जो है, आई हैव स्टार्टेड विद दिस टू रिवाइज द टॉपिक्स बेटे वन बाय वन, एंड that's how we will be proceeding with our discussions ahead. बेटे डियर चिल्ड्रन, वन थिंग मोर, अगर आपको कभी भी लगे कि कोई पॉइंट कोई टॉपिक आप मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हैं, एक बार मुझे मैसेज कर देना. मैं आपको यहाँ इस क्लास में वो टॉपिक पहले करवा दूंगा. बेटे डियर स्टूडेंट्स, माय पर्पस इज टू मेक यू रिवाइज द टॉपिक्स यू हैव स्टडीड, and if the topics will be of your choice, then I will feel very happy along with you people beta. So SI unit beta जो है force, this is beta Newton, this is well known to you beta. And SI unit of distance beta, this is meter, we will denote it by small m. So बेटे आपके पास जो वर्क डन है, इसके फिर यूनिट्स बेटे क्या बन जाएंगे? लेट अस फोकस अपॉन दैट. वी विल से दैट वर्क डन W, दिस इज न्यूटन इनटू मीटर. और बेटे जो ये न्यूटन इनटू मीटर है, दिस इज कॉल्ड बेटा व्हाट? जूल. दिस इज जूल बेटा. अब ध्यान दीजिए, वर्क डन 1 जूल कब होगा? वी विल से दैट वर्क डन 1 जूल के बराबर बेटे कब होगा? इफ ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन displaces an object
by 1 meter comma 1 joule work is said to be done बेटा। सो बेटे डियर स्टूडेंट्स 1 न्यूटन का फोर्स है, उस फोर्स ने आपके ऑब्जेक्ट को 1 मीटर के डिस्टेंस तक डिस्प्लेस कर दिया, तो वर्क डन आपका 1 जूल हो गया बेटा, और जूल आपका एसआई सिस्टम में वर्क डन का यूनिट है बेटा। सो इट इज बेटे ऑलरेडी मेंशन्ड ओवर हियर। अब बेटे आपको थोड़ा सा मैं बेटा जो इसका सीजीएस यूनिट है वर्क डन का, उसके बारे में भी बेटे गाइड करूंगा। दैट CGS बेटे, CGS का फुल फॉर्म होता है सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड। क्लियर बेटे? एक बार फिर से सुन लो बेटा, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। सेंटीमीटर डिस्टेंस का यूनिट है बेटा, और G ग्राम मास का यूनिट है, सेकंड टाइम का यूनिट है। बच्चों फिर से सारे बच्चे सुन लीजिए बेटा, C फॉर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस बेटा, G फॉर ग्राम्स, ग्राम इज द यूनिट ऑफ बेटे मास, एंड S फॉर सेकंड, एंड S इज द यूनिट ऑफ बेटा टाइम, सेकंड इज द यूनिट ऑफ टाइम बेटे। सो जैसे आप बेटे डिस्टेंस के यूनिट्स की बात कर लें, एक आपके पास मीटर होता है, एक सेंटीमीटर भी होता है। मीटर बड़ा यूनिट है, सेंटीमीटर छोटा यूनिट है, या मीटर आपका एसआई सिस्टम में है, सीजीएस में सेंटीमीटर है। बिल्कुल उसी पैटर्न पे हियर बेटा आपका जो जूल है, दिस इज इन एसआई सिस्टम, एंड बेटे इन सीजीएस सिस्टम इट विल बी अर्ग्स बेटा। सो इन सीजीएस सिस्टम बेटा अर्ग is the unit of your work done. Now beta dear children, as we are talking about CGS system and our work done is equal to force multiplied by the distance covered beta। बेटे CGS सिस्टम में फोर्स का क्या यूनिट होता है पुत्र? अरे न्यूटन तो एसआई में है ना, डाइन। वेरी नाइस बेटे, वेरी नाइस। और बेटे डिस्टेंस का सेंटीमीटर है, अभी आपको बता के तो हटाऊं, सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड्स बेटा। सो बेटे आपके पास अगर 1 डाइन का फोर्स एक्ट करेगा किसी भी ऑब्जेक्ट पे, और ये 1 सेंटीमीटर तक आपके ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करेगा, देन वी विल से दैट वर्क डन इज 1 अर्ग बेटा। बिल्कुल सेम तरीके से डेफिनेशन है, कोई चेंज नहीं है। फिर से ध्यान दीजिएगा, वर्क डन इज said to, रिलेशन भी कर रहा हूं बेटे, भावना शर्मा बेटे, आई एम कमिंग टू द, अब बेटे ये मुझे कंटिन्यू करने दो, एक बार मुझे बता देना कि क्या करना है, मैं वहीं से शुरू कर लेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे अगर जो टॉपिक कहेंगे मैं वहां से स्टार्ट कर लूंगा, फायदा तो उसी में है। जो चीज आप सुनना चाहते हैं सिलेबस के रिगार्डिंग, if I will be speaking on that topic, तो फिर दोनों तरफ फायदा होगा। तो अभी मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं था कि आपने कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना चाहते हैं, तो दैट इज व्हाई आई स्टार्टेड विद द वर्क डन। अदरवाइज कोई भी आपकी चॉइस का टॉपिक हो, कोई चैप्टर हो, मेरे मैसेज बॉक्स में एक बार मैसेज कर देना कि सर ये पहले करवा दो, आई विल फील वेरी हैप्पी बेटा। सो 1 अर्ग 1 डाइन एंड 1 सेंटीमीटर के प्रोडक्ट के बराबर है। वी विल से दैट वर्क डन इज 1 अर्ग इफ ए फोर्स ऑफ 1 डाइन डिस्प्लेसेस एन ऑब्जेक्ट थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर प्रोवाइडेड द फोर्स एंड द डिस्टेंस कवर्ड दीज आर इन द सेम डायरेक्शन बेटा। सो भूमिका बेटे मेरे बाद में मैसेज कर देना मुझे, ऐसे नहीं, मुझे पता नहीं चल पाएगा, फिर ध्यान डिवाइडेड हो जाता है आपके स्क्रीन की तरफ और इधर। कोई बात नहीं, आज कंटिन्यू करिए, मैं नेक्स्ट टाइम से आपकी जो कहोगे वो करवा दूंगा। अब बेटे रिलेशनशिप की बात करें, वी हैव बेटे जूल्स एंड अर्ग्स, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है बेटा? लेट अस वर्क अबाउट दिस रिलेशनशिप। Dear students, we have said that work done is the product of the force and the distance covered in the direction of the force. और
1 joule is the work done when a force of 1 Newton displaces an object by 1 meter. 1 Newton, in our second chapter, Force and Laws of Motion, we have said that 1 Newton is 10 raised per 5 dynes, bete. You remember that relationship, na bete? And bete, dear children, also 1 meter, this is equal to 100 सेंटीमीटर. ये तो कॉमन बात है, छोटे बच्चों को सिखाई जाती है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं ना बेटा. तो आइए जस्ट बेटे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इन वैल्यूज को. आई विल कॉल दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 1 बेटा. सो बेटा आई विल हैव 1 जूल is equal to beta dear 1 Newton, that is equal to 10 raised per 5 dynes beta. So this is equal to 10 raised per 5 dynes and multiplied by 1 meter, this is equal to beta 100 centimeters. So I can write it as 10 raised per 2 centimeters beta. बेटा एक बात याद रखिए, in the product of the two numbers in terms of powers of 10, powers are always added up. प्रोडक्ट में पावर्स एड अप हो जाया करती हैं. सो आई विल हैव 10 रेज़ पर बेटे 5 ये हो गया और 2 ये हो गया. दिस इज इक्वल टू 7 एंड दिस इज 9 इनटू सेंटीमीटर. अभी अभी हमने डिस्कस किया है 1 डाइन into 1 centimeter, this is equal to 1 erg bete. So this is equal to 10 raised per 7 ergs bete. So dear children, 1 joule 10 raised per 7 ergs के बराबर होता है. इस चीज को आप अपने माइंड में जरूर रखिए. कई बार न्यूमेरिकल्स में जरूरत पड़ जाती है. वैसे सिलेबस में हो सकता है कि ये रिलेशनशिप की डेरिवेशन ना हो, बट वी माइट बी नोइंग दैट कि जूल और आपका जो अर्ग है ये किस तरीके से आपस में रिलेटेड है. क्लियर हो गया बेटे? चलें आगे बच्चों. देन डियर, अभी तक तो हमने बात की थी कि आपका वर्क डन जो है तब हमने निकाला था जब फोर्स और डिस्टेंस सेम डायरेक्शन में थे. इमेजिन कि ये सेम डायरेक्शन में नहीं है, देन व्हाट विल हैपन बेटा? डियर चिल्ड्रन, वंस अगेन रिपीटिंग, रोल नंबर 10, 25, 35, 9th A, B, C, D आपकी होमवर्क वाली कॉपीज जिन पे आप अपना NCERT का एक्सरसाइज सॉल्व करते हो, दीज आर रिक्वायर्ड बाय मैडम प्रिंसिपल. तो जब भी आपका कंप्लीट हो जाए विद इन ए डे, और ज्यादा देर मत लगाइएगा, आप इनको मुझे भेज दीजिए. आई विल चेक दीज एंड आई विल फॉरवर्ड दीज टू मैडम प्रिंसिपल बेटा. सो लेट अस बेटे हैव फर्दर work done when the force and the distance covered are not in the same direction. Work done. Dear students, again imagine that here this is the straight line beta, and where we have the object placed at point A, small m being the mass of the object beta. Now you can well imagine I apply a force F. This is the force applied on the object, and this force is making, suppose, an angle theta with the horizontal direction. और आपका जो ऑब्जेक्ट है बेटा A पॉइंट से शिफ्ट होकर ये B पॉइंट तक पहुंच गया, और डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू बेटे S. डायग्राम को जरा फोकस करके देखिए बेटे, इधर देखिए, ध्यान दीजिए इस तरफ बेटा. ए पॉइंट पे ऑब्जेक्ट आपका पड़ा है, एफ आपने फोर्स अप्लाई किया. फोर्स अब आपका डिस्टेंस कवर्ड वाली डायरेक्शन के पैरेलल नहीं है, इट इज मेकिंग सम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल. ये एंगल 30 डिग्री भी हो सकता है, 50 डिग्री भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, इट मे बी इवन मोर देन 90 बेटा. सो जब मैंने आपको ये टॉपिक बेटे समझाया था, उस टाइम पे आपको एक बात कही थी कि ये जो फोर्स है हम इसको बेटे 2 कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं. ठीक है जी. जैसे इमेजिन कर लो एक पर्टिकुलर फोर्स F जो है, आप इसको 2 कंपोनेंट्स में जब स्प्लिट कर लेते हो
जिस डायरेक्शन में एंगल बना पड़ा है उस डायरेक्शन में ये एफ कॉस थीटा होगा, और ये वर्टिकल डायरेक्शन जो है इस डायरेक्शन में ये एफ साइन थीटा होगा। अगेन फोकस बेटा, अब ये एफ नहीं रहा, एफ को मैंने एलिमिनेट कर दिया। एफ की जगह पे मेरे पास दो कंपोनेंट्स बन गए हैं फोर्स के, एफ कॉस थीटा एंड एफ साइन थीटा। अगर ये दोनों मिल जाएंगे हमें फिर एफ मिल जाएगा। तो यहाँ तो आप अकेला एफ कंसिडर कर लो, या फिर आप बेटे एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा कंसिडर कर लीजिए। तो मैंने ऐसा किया क्यों? व्हाई टू ब्रेक दिस इनटू द एफ कॉस थीटा एंड एफ साइन थीटा कंपोनेंट्स? बिकॉज मुझे वर्क डन मिलेगा ही तब जब मैं डिस्टेंस कवर्ड की डायरेक्शन में फोर्स को काउंट करूंगा। मुझे ये नहीं चाहिए फोर्स, आई नीड द फोर्स along the direction of the distance covered. That is why मैंने इसको दो पार्ट्स में ब्रेक किया है, तोड़ दिया है, डिवाइड कर लिया है। गुड। सो बेटा वर्क डन मेरे पास, फिर बेटे देखो ये तो मेरे काम की चीज है नहीं। जब हम वर्क डन की बात करते हैं वी ऑलवेज से दैट इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द डिस्टेंस कवर्ड प्रोवाइडेड बोथ आर इन द, हाँ जी, सेम डायरेक्शन। बहुत बढ़िया। तो ये और ये अब देखिए सेम डायरेक्शन में है, तो आई विल से दैट दिस इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय दिस डिस्टेंस कवर्ड एस बेटा। इसको थोड़ा सा टर्म्स को रीअरेंज कर लीजिए, इट विल बी इक्वल टू एफ एस कॉस ऑफ एंगल थीटा बेटा। तो ये आपके पास अब वर्क डन आ गया है। डियर स्टूडेंट्स बेटा अगर आपका एंगल थीटा 0 डिग्री है, आइए देखें स्पेशल केसेस में, स्पेशल केसेस इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, बेटे 0 डिग्री का मतलब है कि ये फोर्स डिस्टेंस कवर्ड की डायरेक्शन में ही है। मैं डायग्राम भी सेपरेटली ड्रॉ कर सकता हूं। ये आपका ऑब्जेक्ट, ये फोर्स और डिस्टेंस कवर्ड इसी डायरेक्शन में, तभी थीटा 0 होगा। और हमेशा अपने माइंड में रखिए कॉस ऑफ एंगल 0 ये 1 के बराबर होता है। ये न्यूमेरिकल वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी। इसमें मैं पुट कर दूंगा मेरे पास वर्क डन एफ एस कॉस 0 will be 1, it will be equal to f into s, and beta this is the maximum work done beta. Is it clear up to this point beta? Let us then proceed ahead. Then if our angle theta, this is 90 degree beta, let us see what will happen, or we will be getting this beta. सेकेंड केस बेटा, ये केस मेरा पहला था स्पेशल केस जब थीटा 0 हो गया था। नाउ थीटा दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री। बेटे डियर चिल्ड्रन याद रखिए न्यूमेरिकल वैल्यू, कॉस ऑफ एंगल 90 डिग्री बेटा 0 होता है। इस वैल्यू को कभी नहीं भूलना आपने। सो वर्क डन विल बी एफ एस कॉस 90, वर्क डन विल बी इक्वल टू 0। इसके लिए मैं सेपरेटली डायग्राम ड्रॉ कर सकता हूं बेटा। आइए देखें, ये आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस और ये आपका ऑब्जेक्ट ए, फोर्स आपने अप्लाई कर दिया अपवर्ड डायरेक्शन में, और आप एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि आपका ऑब्जेक्ट इधर मूव कर जाए। तो दोनों के बीच में एंगल कितना बना? 90 डिग्री देख रहे हैं आप। तो cos 90 will be equal to 0. No work will be done. Dear students, once again, कई बार आपसे क्वेश्चन की फॉर्म में पूछ लिया जाता है कि ए कुली is carrying a load on his head and is moving along the horizontal surface. या आप, हम अपनी एग्जांपल ले लेते हैं। आप जैसे स्टूडेंट्स हैं, आप अपना बैग लेके आए हो स्कूल, आपने बैग अपना उठाया और बैग उठाकर आप बेटे अलोंग द हॉरिजॉन्टल मूव कर रहे हो। आपने बैग अपने हेड पे उठा लिया मान लीजिए, देन उस केस में क्या है, आप फोर्स वर्टिकली अपवर्ड अप्लाई कर रहे हो और डिस्टेंस हॉरिजॉन्टली कवर कर रहे हो। तो दोनों में एंगल 90 हो गया। और फिजिक्स की लैंग्वेज में टेक्निकली आपने कोई वर्क नहीं किया। क्यों?
क्योंकि आपका थीटा 90 हो गया है। और वन थिंग मोर बेटा, ये जरूरी नहीं है कि वर्क डन सिर्फ थीटा 90 होने पे ही होना है। अगर आप फोर्स ही ना अप्लाई करो, आप जैसे इमेजिन कर रहे थे कि हमने एक जी बैग उठाया हुआ है, अगर वो पर्सन कहे मैंने उठाना ही नहीं है जी बैग, तो फोर्स कहाँ से लगेगी? नहीं लगेगी। अगर फोर्स नहीं है तो आपका वर्क डन जीरो है। सो तीन सिचुएशंस में वर्क डन जीरो होगा। पहला सिचुएशन, आपने फोर्स अप्लाई ही नहीं किया, वर्क डन खत्म हो गया, जीरो हो गया। दूसरी बात, अगर फोर्स अप्लाई कर दी, वो बंदा मूव ही नहीं किया, डिस्टेंस कवर्ड जीरो, अगेन वर्क डन जीरो हो गया। तीसरी बात, आपका थीटा तो 90 है, वर्क डन वैसे भी जीरो ही होना है, तो वर्क डन खत्म हो गया बेटा। तो ये आपको सीबीएसई में बहुत बार पूछा जाता है बेटा कि एक कुली है, वो अपने हेड के ऊपर एक लोड उठाए हुए है और वो मूव कर रहा है, व्हाट इज द वर्क डन? डायरेक्टली दिस विल होल इंडिकेटिंग द भूमिका कुमारी। बेटा बेटे, व्हाट यू वांट टू से दैट, व्हाट इज टू बी रिपीटेड? यस डियर चाइल्ड। सो बेटे थर्ड केस की बात करके देखते हैं। लेट अस हैव द थर्ड केस और द थर्ड सिचुएशन। वी हैव एंगल थीटा टू बी इक्वल टू, हाँ जी, वर्क डन इज जीरो की सिचुएशन कह रहे हो। देख लो बेटे, एक बार फिर से देख लो। वर्क डन बेटे तीन केसेस में जीरो होगा। अगर तो आप फोर्स अप्लाई ही नहीं करते, वर्क डन खत्म हो गया, जीरो हो गया। या दूसरी बात, आपने फोर्स अप्लाई किया लेकिन आपने मूव ही नहीं किया, एस इज जीरो, तो भी वर्क डन जीरो है। और तीसरा, 90 डिग्री अगर एंगल बनता है तो भी जीरो है। तीनों सिचुएशंस में वर्क डन विल बी जीरो बेटा। चले भाई आगे। थर्ड केस, अगर एंगल थीटा 180 डिग्री हो जाए, ऑलवेज कीप इन माइंड दैट cos 180 दिस इज इक्वल टू -1 बेटा। तो वर्क डन आपका नेगेटिव हो जाएगा बेटे इस केस में। तो आई विल से दैट वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस cos ऑफ 180। बेटे ये cos 180 -1 के बराबर हुआ करता है। वर्क डन इज इक्वल टू -f into s। Dear students, this negative sign indicates that this is the minimum work done। ये मिनिमम वर्क डन नहीं है, ये जीरो वर्क है भाई। इधर देख बच्चे, इधर देख भाई, ये वर्क डन जीरो है और ये जीरो से भी कम है, ये नेगेटिव वर्क डन है। सो दिस इज द मिनिमम वर्क डन बेटे। सो इस तरीके से आप बेटे अपना जो वर्क डन है इसकी टाइप्स के बारे में डिस्कशन कर सकते हो। दो पॉइंट्स और शेयर करना चाहूंगा आपसे मैं। इनमें अगर आपका एंगल थीटा, याद रखिएगा ये स्पेशल केस है, अगर थीटा लेस देन 90 डिग्री हो जाए तो जितना मर्जी एंगल हो 89.999999 कर लो, चाहे 90 नहीं होना चाहिए। देन बेटे कॉस ऑफ एंगल थीटा ये पॉजिटिव होता है, और अगर ये पॉजिटिव होगा तो आपका वर्क डन जो है दैट विल बी एफ इंटू एस। वो आपका पॉजिटिव वर्क डन आ जाएगा। वी विल से दैट पॉजिटिव वर्क आपने परफॉर्म किया है। इसका बेस्ट एग्जांपल है, एक लॉन रोलर है, ग्रास कटिंग के लिए आपने लॉन रोलर देखा है ना? नहीं तो क्रिकेट ग्राउंड तो वो देखते ही होंगे, जब टीवी पे मैच आता है कई बार वो देखते हैं कि अपनी ग्राउंड को वो तैयार कर रहे हैं। वो उनके पास वो जो है रोलर टाइप ऑफ अरेंजमेंट होता है। इट इज मैनुअल भी होता है, इलेक्ट्रिक या मशीन ऑपरेटेड भी होता है। तो जो मैनुअल वाला होता है बेटे, उसमें फोर्स जब अप्लाई की जाती है देन बेटा एंगल 90 डिग्री से छोटा ही होता है, वर्क डन विल बी पॉजिटिव बाय द ग्राउंड्स पर्सन। सेकेंड केस है बेटा एंगल थीटा मोर देन 90। 90 नहीं होना चाहिए, 90.1 हो जाए, 2 हो जाए, 180 तक चला जाए, देन कॉस ऑफ एंगल थीटा नेगेटिव हो जाएगा, और उस केस में जो वर्क डन है दैट विल बी बेटे नेगेटिव वर्क डन। सो डियर चिल्ड्रन, so these are the 5 different type of situations in which we can have the work done discussed। पहला था थीटा 0 हो गया, cos 0 1, मैक्सिमम वर्क इज डन।
दूसरा था थीटा 90 हो गया, कॉस 90 0, नो वर्क इज डन। तीसरा था थीटा 180 हो गया, कॉस 180 -1, मिनिमम वर्क डन। चौथा था आपका थीटा लेस देन 90, पॉजिटिव वर्क डन। पांचवा केस है आपका एंगल मोर देन 90, नेगेटिव वर्क डन। सो इन दिस मैनर आप बेटे वर्क डन की जो अलग अलग एग्जांपल्स हैं इनके साथ अपना डिस्कशन कर सकते हो। नेगेटिव वर्क डन की एक एग्जांपल बेटे आपसे शेयर कर रहा हूं। इमेजिन एक बॉल किसी स्टूडेंट ने अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया। ड्यूरिंग द अपवर्ड जर्नी, अपवर्ड जब वो बॉल मूव कर रहा है तो अपवर्ड मूव करते करते ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट अपवर्ड मूव कर रहा है, तो एंगल दोनों में 180 का बन जाएगा, cos 180 विल बी -1। तो एग्जांपल आप नोट कर सकते हो, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स when the object is moving in the vertically upward direction, that is negative। ठीक हो गई बात है। देन बेटे वर्क डन के बाद डियर चिल्ड्रन मेरे पास कंसेप्ट है बेटे एनर्जी का। लेट अस फोकस अपॉन दिस एनर्जी। व्हाट डू वी मीन बाय एनर्जी, व्हाट डू वी मीन बाय डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, और हम कैसे डील कर पाएंगे बेटा। आइए देखिए एनर्जी। एनर्जी जो है इसको प्रोबेबली आप E से डिनोट कर सकते हैं। एंड एनर्जी इज डिफाइंड एज द अबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू व्हाट, टू डू वर्क। वेरी गुड बेटा। एनर्जी इज डिफाइंड एज द अबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू डू वर्क। एनर्जी को प्रोबेबली वी कैन डिवाइड इन द टू टाइप्स बेटा जो हमारे कोर्स में है। एनर्जी दिस इज बेटे डिवाइडेड इनटू द टू मेन टाइप्स, काइनेटिक एनर्जी एंड बेटा दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। ये दोनों टाइप की एनर्जी हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद बेटे वी विल कम टू द अदर प्रिंसिपल्स रिगार्डिंग दिस काइनेटिक एनर्जी एंड ऑल दैट। अब सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी पे बेटे फोकस करेंगे। लेट अस डिस्कस बेटा द टर्म काइनेटिक एनर्जी बेटे। द वर्ड काइनेटिक मींस दैट बेटा मोशन, मूविंग ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के पास अगर उस ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से एनर्जी होगी, we will say that कि that object possesses some kinetic energy। अगर मैं scientifically define करूं बेटा, I will say that kinetic energy is defined as the energy possessed by an object by virtue of its kinetic energy, sorry, virtue of its motions, not kinetic energy। मूव करता है ऑब्जेक्ट, उसके मूव करने की वजह से जो एनर्जी होगी दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 1/2 इंटू मास इंटू स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। ये फॉर्मूला की डेरिवेशन हमारे सिलेबस में है, हमें इसकी डेरिवेशन भी करनी है। तो करें स्टार्ट। यस, आइए देखें। देन काइनेटिक एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन क्या है, फार्मूला क्या है, आइए देखें, डिस्कस करके देखें इसको। बेटे इमेजिन ये आपके पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, स्ट्रेट सरफेस है, मे बी द फ्लोर ऑफ योर हाउस। एक टॉय कार इस सरफेस पे पड़ी है एंड इट इज एट पॉइंट ए। ये रेस्ट पे है। दिस इज हैविंग इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू 0। मास इसका टॉय कार का m है और एक बच्चा इसके साथ खेलने की कोशिश कर रहा है। उसने इसके ऊपर ऐसे फोर्स अप्लाई किया, दिस वे। तो जब ये फोर्स अप्लाई किया जाएगा आपका टॉय कार जो है इट विल स्टार्ट मूविंग बेटा।
and it will reach up to point B due to the action of the force applied. लेकिन जब ये B पॉइंट पे आपने देखा है ये रेस्ट पे नहीं है, अब इसकी वेलोसिटी B के बराबर वेलोसिटी इसकी है और A से लेकर B तक आपके ऑब्जेक्ट ने S के बराबर का बेटे डिस्टेंस कवर कर रखा है। वो बच्चे ने इसको इस तरीके से फोर्स अप्लाई करके कितना वर्क किया, दैट वर्क डन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द डिस्टेंस कवर्ड। क्यों? क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है ना। फोर्स किसके बराबर होता है? F। यस, M इंटू ए। भूल जाते हैं आप जल्दी। F जो है ये M इंटू ए के बराबर है, मास एंड एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट बेटा, एंड we will get work done is equal to M into A into S. Let me call this as equation number 1. अगर आपका फ्लोर काफी ज्यादा स्मूथ है तो सारे का सारा वर्क डन उसकी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगा, एनर्जी का लॉस नहीं होगा। तो वी कैन से दैट बेटा वहां पे अगर वर्क डन जो है W जो है दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, तो इस W की जगह पे मैं फिर काइनेटिक एनर्जी E लिख लूंगा। This is equal to M into A into S. This is my equation number 1. Third equation of motion, V square minus U square is equal to 2AS. U आपका 0 है, वो देखिए लिखा हुआ है। So V का स्केयर जो है 2AS हो गया, AS बन गया 1/2 into V square। AS की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करिए इस एक्सप्रेशन में, we will get energy this is equal to M into half V square और energy is equal to 1/2 into mass into square of the velocity. So this is how we can have the expression for the kinetic energy of the object. एक बार मैं स्टेप्स रिपीट कर देता हूं बेटे, ठीक है। ये स्ट्रेट सरफेस हॉरिजॉन्टल रोड, ऑब्जेक्ट पड़ा है, आपने ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई किया, ऑब्जेक्ट ने फोर्स अप्लाइड की डायरेक्शन में डिस्टेंस S कवर किया, वर्क डन F इंटू S के बराबर आ गया हमारा। और बेटे फोर्स जो है हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वाला चैप्टर जो है उसमें प्रूव किया हुआ है कि फोर्स M इंटू ए के बराबर है। फोर्स की जगह पे मैंने M इंटू ए लिख दिया। अगर आपका स्मूथ है सरफेस, एक्स्ट्रा स्मूथ है, सारे का सारा वर्क डन काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगा, नो लॉस ऑफ वर्क और एनर्जी विल बी देयर। तो वी विल से दैट वर्क डन E के बराबर हो गया एनर्जी के बराबर, एंड E विल बी इक्वल टू M इंटू ए इंटू S। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन B स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS। इनिशियली आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, U इज एट हैविंग 0 न्यूमेरिकल वैल्यू, देन वी विल से दैट बेटा V स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS। बेटा अगर ये 2AS के बराबर है तो AS यहाँ से निकाल लिया और AS की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में डाल दी। वी हैव E इज इक्वल टू 1/2 MV स्क्वायर और इट इज इक्वल टू हाफ MV स्क्वायर बेटा। सो दिस इज हाउ वी गेट द एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी बेटा। इस एक्सप्रेशन को आप बेटे 1-2 बार जरूर लिख के देखिए, सो दैट की डेरिवेशन आप आसानी से जो है अगर कोई आपसे पूछे तो आप करके दिखा दो। सो दैट्स बेटे ऑल फॉर द डे, बेल हैज गॉन। थैंक यू ऑल बेटा, हैव ए गुड डे अहेड बेटा। थैंक यू बेटा।